جنگ آزادی کی ناکامی نے ہندوستانیوں کو کیسے تقسیم کیا؟ بنگال میں ہندو مسلم اتحاد کی کامیابی ناکامی میں کیسے بدل گئی؟ وہ کون تھے جنہوں نے ایک طبقے کو حکمران اور دوسرے کو مظلوم غلام دکھانے کی غلط تاریخ لکھی؟ اس ناول کی کہانی کیا تھی جس نے ایک مذہب کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا؟ کیورس فیلوز میں فیصل وڑائچ۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد کا ہندوستان اب براہ راست تاج برطانیہ برٹش کراؤن کے انڈر آ چکا تھا۔ ہندو اور مسلمان جنہوں نے مل کر جنگ آزادی لڑی تھی وہ ناکامی کے بعد مایوس ہو چکے تھے۔ زیادہ تر ہندو مسلم لیڈر سمجھ رہے تھے کہ فی الحال انگریزوں کو میدان جنگ میں ہرا کر آزادی لینا مشکل ہے۔ اس کے بعد ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی مذہبی شناخت کو چھوڑ کر خود کو صرف ہندوستانی سمجھیں، اسی بنیاد پر اب وہ اپنی سیاست کریں اور مل جل کر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ان میں پورا پوٹینشل بھی موجود تھا کیونکہ 1857 میں انہوں نے متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بھی کئی علاقوں میں دونوں مذاہب کے کسانوں نے مل کر زمینداری نظام اور برٹش سرکار کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ خاص طور پر 1860 میں 1860 میں بنگال میں انڈیگو پلانٹیشن کے خلاف ان کی تحریک بہت کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ انڈیگو ایک پودا تھا جس میں قدرتی رنگ پایا جاتا تھا۔ فیکٹریوں میں یہ رنگ نکال لیا جاتا تھا اور اسے بطور ڈائی بیچا جاتا تھا۔ یہ کپڑا رنگنے کے کام آتا تھا، لیکن یہ پودا اگانے والے زمیندار کسانوں سے جبری مشقت کرواتے تھے۔ 1857 کے بعد کسانوں نے انڈیگو اگانے سے انکار کر دیا۔ زمینداروں نے ان پر غنڈوں سے حملے کروائے اور پولیس کو بھی استعمال کیا، لیکن کسان ڈٹ گئے۔ انہوں نے غنڈوں اور پولیس دونوں کی ٹھکائی کی اور انڈیگو فیکٹریز پر حملے کیے۔ بڑھتے ہوئے وائلنس کے سامنے برٹش سرکار بے بس ہو گئی۔ آخر میں بنگالی زمینداروں نے انڈیگو اگانا بند کر دیا اور فیکٹریوں کو تالے لگ گئے۔ جلد ہی کسانوں کو جبری مشقت سے آزادی مل گئی۔ ہندو مسلم اتحاد نے انگریزوں اور ان کے حامی طاقتور زمینداروں دونوں کے دانت کھٹے کر کے دکھا دیے تھے۔ لیکن کیورس فیلوز انگریز سرکار بھی کسانوں کی اس تحریک کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان پر قبضہ رکھنے کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں میں پھوٹ ڈلوانا، ڈیوائیڈ فار رول کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، جب بھی دو دوستوں یا گروپس کو دشمن بنانا ہو آپس میں تو اس کا سب سے کارآمد تاریخی فارمولہ یہی ہے کہ دونوں کو بتایا جائے کہ دراصل دوسرا تمہیں لوٹ رہا ہے، تم تو سادہ ہو، دوسرا بہت چالاک ہے۔ بس یہ فارمولہ چلائیں اور دیکھیں کہ لڑائی خود بخود شروع ہو جائے گی۔ لیکن انگریزوں کے لیے ہندوستان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہندو بہت بڑی میجورٹی میں تھے۔ انہیں یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ آج کا مسلمان جو اقلیت میں ہے تمہاری نسبت، وہ تمہیں لوٹ رہا ہے۔ انگریزوں نے اس کا حل ماضی سے نکال لیا۔ ہندوؤں کو یہ بتانا شروع کیا کہ مسلمان دراصل غیر ملکی حملہ آور تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں تم پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے، تمہیں لوٹا تھا، تمہارے مذہب کو نقصان پہنچایا تھا، زبردستی اپنا مذہب پھیلایا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہندوؤں پر یہ ثابت کرنے کے لیے مسلم دور کی لکھی ہوئی فارسی تاریخوں کا سہارا لیا گیا، لیکن ان تاریخوں کی منمانی ٹرانسلیشنز کی گئی جو غلطیوں سے بھرپور تھیں۔ پھر ان میں سے کچھ حکمرانوں جیسا کہ اورنگزیب کے متعلق اپنی مرضی کے واقعات چنے گئے اور انہیں توڑ مروڑ کر ایگزیجریشن کے ساتھ دوبارہ لکھا گیا اور پیش کیا گیا، جبکہ مغل امپائر کے بعد کے انگریزی دور حکومت کو ایک نعمت کے طور پر پیش کیا جانے لگا جس میں ہندوؤں کو ہر طرح کی مذہبی آزادیاں حاصل تھیں۔ انگریزوں کی لکھی ہوئی ایک اور ایسی ہی مشہور کتاب دا ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورینز تھی۔ یہ بھی فارسی ٹرانسلیشن کو من مانا اینگل دے کر لکھی گئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں نے دراصل ہندوؤں کو غلام بنا رکھا تھا۔ کتاب کے مطابق مسلم حکمرانوں نے ہندوؤں کا قتل عام کیا، ان کی عبادت پر پابندیاں لگوائیں اور مقامی لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مذہب کو تبدیل کریں۔ حالانکہ یہ تمام باتیں ہسٹوریکلی غلط تھیں۔ ماضی میں کچھ تلخ واقعات ضرور ہوئے تھے جنہیں آج بھی کنڈیم کیا جاتا ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو وہ دور دونوں مذاہب کے ٹکراؤ کا زمانہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ انڈیا میں 1988 میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے انڈیا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس۔ یہ کتاب بھارتی ہسٹورین بپن چندرا سمیت 5 ہسٹورینز نے مل کر لکھی ہے، یعنی بہت ہی ایتھینٹک کتاب سے سمجھا جاتا ہے، کم از کم انڈین پوائنٹ آف ویو سے۔ اس میں لکھا ہے کہ تاریخی طور پر ہندوستان کے مسلمز بھی ہندوؤں کی طرح ہی غریب تھے۔ اسی طرح کہیں زمیندار اور راجے یعنی حکمران کلاس مسلم بھی ہوتی تھی اور ہندو بھی۔ سینکڑوں ریاستوں میں تمام حکمران کسی ایک مذہب یا ایک قوم سے بالکل نہیں تھے، مختلف قوموں سے تھے، ہندو بھی تھے اور مسلم بھی تھے اور کچھ جگہوں پر سکھ بھی تھے۔ لیکن برٹش رائٹرز نے بلیک اینڈ وائٹ تصویر پیش کی کہ تمام مسلمان دراصل حکمران طبقے سے تھے اور تمام ہندو دراصل ان کی رعایا تھے۔
दोस्तों, कॉलोनियल अंग्रेज राइटर्स सिर्फ हिंदुस्तान की सियासी तारीख ही को नहीं परागंदा कर रहे थे, बल्कि वो यहाँ के मुश्तरका कल्चर को भी हिंदू मुस्लिम अलग अलग कल्चर्स में तकसीम कर रहे थे। एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के जरिए हिंदुओं को भड़काने के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों पर भी तवज्जो दी थी। मुगल हुक्मरान चूंकि मुसलमान थे, इसलिए मुसलमानों में मुगल सल्तनत के खात्मे का असर ज्यादा था। फिर मुआशी बदहाली का भी यही ज्यादा शिकार थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार के लिए इन्हें भड़काना कहीं आसान साबित हुआ। मुसलमानों के जहनों में ये बात डाली गई कि हिंदू मेजोरिटी तो तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन मुसलमानों को इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, यानी मुस्लिम पीछे रह गए हैं। इन्हें चाहिए कि वो अपनी अलग शनाख्त बनाएं और अंग्रेजों से अपने ताल्लुकात ठीक रखें, वरना सब तबाह हो जाएगा। जिस तरह हिंदुओं को भड़काने के लिए किताबें लिखी जा रही थी, उसी तरह मुसलमानों की जहन साजी के लिए भी किताबें ही छप रही थी। 1871 में W. हंटर की लिखी हुई एक किताब मार्केट में आई, जिसका टाइटल था द इंडियन मुसलमान्स। इसमें वैसे तो मुस्लिम दौरे हुकूमत पर बहुत तनकीद की गई थी, लेकिन इसमें एक बात बहुत अहम थी, वो ये कि हिंदुस्तान के मुसलमान तालीम और रोजगार में बहुत पीछे और माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि हिंदू तरक्की में इनसे आगे निकल चुके हैं। इसलिए अब बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो इनकी तालीम और दूसरे शोबों में मदद करे। बज़ाहिर हमदर्दी की आड़ में लिखी हुई ये किताब भी दरअसल मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डलवाने के लिए तैयार की गई थी। साथियों, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सिर्फ किताबों की हद तक नहीं थी, बल्कि सरकार भी, इंग्लिश सरकार भी इसके लिए काम कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हिंदुस्तान में मर्दमशुमारी यानी सेंसस हिंदुस्तानी कौमी शनाख्त की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर करवाएगी। यानी हिंदुस्तान को हिंदू, मुस्लिम और दूसरे मज़ाहब में तकसीम करके गिना और पेश किया जाएगा। इसी गिनती के मुताबिक इनका सरकारी वसाइल में हिस्सा तय होगा, और यही बात अहम थी, यानी मजहबी बुनियादों पर मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा कायम की जाएगी। 1881 में 1881 में हिंदुस्तान की पहली मर्दमशुमारी मजहबी बुनियादों पर करवाई गई, लेकिन इस मर्दमशुमारी से मजहब के दुरुस्त आदादो शुमार हासिल नहीं हो सके, इसलिए कि हिंदू मजहब में इतनी डाइवर्सिटी थी कि इसके मानने वाले खुद को एक रिलीजन समझते ही नहीं थे। ये लोग अलग अलग फिरकों और जातों में बटे हुए थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। इसलिए अक्सर हिंदुओं ने मजहब के खाने में अपने फिरके, अपने देवता, अपने सेक्ट या अपनी कौम या अपने सूबे का नाम लिखवाया। अब भले ही इस मर्दमशुमारी के नतायज इतने दुरुस्त नहीं थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की अंग्रेज पॉलिसी वाज़ेह तौर पर काम करने लगी थी। क्यूरियस फेलोज डिवाइड एंड रूल की कैंपेन जल्द ही अपना असर दिखाने लगी। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में कुछ ऐसे तबके पैदा हो गए जो अपने पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ब्रिटिश प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करने लगे। हिंदुओं के पढ़े लिखे मिडिल क्लास तबके का एक हिस्सा इस प्रोपेगेंडे का शिकार होकर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में फंस गया, यानी एक हिंदू राइट विंग पैदा हो गया। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किताब में इस तबके की मेंटालिटी को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। इसमें लिखा गया है कि हिंदू इंतहापसंदों ने इस एम्पेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को कबूल कर लिया, यानी इसको कि हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान थे और वो तमाम हिंदुओं के मुश्तरका दुश्मन थे और इनकी हुकूमतें दरअसल गैर मुल्कियों की हुकूमतें थीं। उन्होंने मुकामी तारीख को हिंदू मुस्लिम लड़ाई के एंगल से देखना भी शुरू कर दिया। मुसलमानों और मुगलों के दौरे हुकूमत को 1000 साला गुलामी और गैर मुल्की हुकूमत का नाम दे दिया गया। बातें होने लगी कि हिंदुओं का माजी तो बहुत ही शानदार था, मुसलमानों की आमद से पहले इनका कल्चर बहुत तरक्की याफ्ता हो चुका था, लेकिन मुस्लिम दौर में ये तरक्की याफ्ता कल्चर तबाह कर दिया गया। जबकि इन अदवार में हिंदुस्तान में जो तरक्की हुई थी, इकॉनमी में, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी में, मज़हब में, फ़िलासफ़ी में और आर्ट में जो भी काम हुआ था, इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया इन किताबों में। दोस्तों, बरतानवी हुकूमत और इंटेलेक्चुअल्स की कोशिशों से हिंदुस्तान में मजहबी राइट विंग ताकतवर हो गए। अंग्रेज अपने हिस्से की आग लगाने के बाद अलग हो गए थे और अब तमाशा देखने लगे थे। राइट विंग के इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी अपनी अपोजिशन पर भरपूर अटैक्स भी शुरू कर दिए। बंगाली, हिंदी और हत्ता के उर्दू में भी ऐसे नॉवेल्स, ड्रामे और नज़में लिखी गईं जिनमें इंडियन कौमियत, नेशनलिज्म को हिंदुइज्म के साथ जोड़ा जाने लगा। इस लिटरेचर में मुसलमान हुक्मरानों को जालिम दिखाया जाता था। हिंदू राइट विंग आइडियोलॉजी का शाहकार मास्टरपीस नॉवल था आनंद मठ। यह नॉवल बंगाली फिक्शन राइटर बंकिम चंद्रा चटर्जी ने 1882 में लिखा था। इसमें मौजूद एक गीत वंदे मातरम आज इंडिया में एक नेशनल सॉन्ग की तरह गाया जाता है। इस नॉवल में हिंदुस्तान की धरती को मां करार दिया गया है, क्योंकि इस लफ्ज से जज्बाती करना आसान था। नॉवल की कहानी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की कहानी थी जो 18th सेंचुरी के बंगाल में मुस्लिम हुक्मरान का तख्ता उलटने के लिए लड़ाई लड़ता है। नॉवल के मुताबिक ये ग्रुप मुस्लिम आबादियों को आग लगाता है और लूट मार करता है। लड़ाई के दौरान मुसलमानों को कत्ल करो और वंदे मातरम और ओ हरी ओ मुरारी के नारे भी लगाए जाते थे। नॉवल में ये लिखा है।
लेकिन इस नॉवल की सबसे बड़ी गलती आपको बताएंगे क्या थी? इस किताब में, इस नॉवल में हिंदुओं के एक ग्रुप जो सन्यासी कहलाता था, इसकी बगावत को दरअसल मौजू बनाया गया था। नॉवल में दिखाया गया कि बगावत के वक्त बंगाल पर मीर जाफर की यानी एक मुसलमान की हुकूमत थी। इसी का तख्ता उलट कर सन्यासियों ने अंग्रेजों की हुकूमत को कायम किया, जबकि हकीकत ये थी कि मीर जाफर पहले ही मर चुका था। इसकी मौत के फौरी बाद अंग्रेजों ने इलाहाबाद में शाह आलम सानी से मुआहदा करके बंगाल को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था। यानी बंगाल में जब सन्यासी बगावत हुई उस वक्त वहां किसी मुसलमान या हिंदू की हुकूमत नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। लेकिन प्रोपेगेंडा हिस्टोरिकल नॉवल की तरह आनंद मठ के राइटर ने भी जज्बाती तारीख ही लिखी और वाक़यात की तरतीब को अपने मुफाद के हिसाब से बदल दिया। मगर इस किताब में इस एक हिस्टोरिकल गलती से भी बड़ा ट्रिकी पॉइंट था। वो ये कि इसमें अंग्रेज़ों को दुश्मन के तौर पर कम दिखाया गया था। कहानी में मुखालफत तो दिखाई गई थी, लेकिन इस एंगल से कि अंग्रेज़ दरअसल मुसलमानों को बचाने की कोशिश करने के लिए आते हैं और हिंदू जंगजुओं को मजबूरन फिर उनसे लड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर नॉवल की एक खातून किरदार शांति एक अंग्रेज़ अफसर कैप्टन थॉमस से कहती है कि तुम हमारी और मुसलमानों की जंग में मत आओ, क्यों आ रहे हो, तुम अपने वतन वापस चले जाओ। नॉवल के आखिर में एक हिंदू बुजुर्ग अपने लोगों से कहता है कि अभी हिंदू सल्तनत बनाने का वक्त नहीं आया, अभी हम अंग्रेज़ को हुक्मरान बनाएंगे, फिर हम अंग्रेज़ी तालीम के ज़रिए दुनिया का इल्म हासिल करेंगे। जब तक हिंदू समझदार और ताकतवर नहीं हो जाते, बरतानवी हुकूमत कायम रहेगी, ब्रिटिश कंट्रोल में रियाया खुश रहेगी और हिंदू अपने मजहब पर आज़ादी से अमल कर सकेंगे। इसलिए अक्लमंदों, अंग्रेज़ों से लड़ना बंद कर दो। इस नॉवल ने दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर अंग्रेज के डिवाइड एंड रूल फार्मूले को मुकम्मल तौर पर कबूल किया, बल्कि आगे बढ़ाया। ये मुकामी ग्रुप्स में दुश्मनी को हकीकी गैर मुल्की हुक्मरानों से ज़्यादा नुमायां कर रहा था। दोस्तों, इंडिया में ये नॉवल आज भी बहुत मकबूल है, लेकिन इसे अब हिंदू मुस्लिम दुश्मनी के तनाजुर में बहुत कम पेश किया जाता है। ये जाहिर किया जाता है कि ये दरअसल अंग्रेज़ों के खिलाफ था। 1952 में 1952 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसका पूरा स्क्रिप्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत पर था, जो कि नॉवल की असल कहानी हरगिज़ नहीं थी। अपने वक्त में इस नॉवल ने हिंदुस्तानियों को तकसीम किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद नहीं किया था। बहरहाल साथियों, 19वीं सेंचुरी के हिंदुस्तान में आनंद मठ और दीगर किताबों में जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसका असर हिंदुओं का एक ख़ास तबका कबूल कर रहा था। इसी तरह मुसलमानों में भी एक राइट विंग पैदा हो गया था। इस तबके ने मुसलमानों पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो अपने मजहब पर सख्ती से अमल करें, अंग्रेज़ों से ज़्यादा हिंदुओं को अपना दुश्मन समझें। हिंदू राइट विंग जब मुस्लिम हिस्ट्री पर तनकीद करता तो जवाब में ये लोग उसे डिफेंड करते। हत्ता कि इस कोशिश में मुसलमान उन लोगों को भी अपना हीरो समझने लगे, बताने लगे, जो थे तो मुसलमान ही, लेकिन वो हिंदुस्तान में सिर्फ लूट मार करने के लिए आते थे, जैसा कि महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली। हिंदू मुस्लिम राइट विंग्स दोनों ने अपनी लड़ाई में खतरनाक कदम ये उठाया कि पुरअमन, पीसफुल मजहबी त्योहारों, सिंबल्स और स्लोगन्स को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अक्सर ये ग्रोह जानबूझकर ऐसी हरकतें करता जिनसे दूसरे मजहब की दिल आज़ारी होती। छोटे छोटे झगड़े होने लगे जो बढ़ते बढ़ते फिर फसादात में बदल गए। 1870 की दहाई में 1870s में पहले बरेली में फसादात हुए, फिर 1880 की दहाई 1880s में आगरा में फसादात फूट पड़े। इस माहौल में हिंदुओं की एक तंजीम आर्या समाज, जो 1875 में 1875 में कायम हुई थी, उसने गौ रक्षा की मुहिम शुरू कर दी। यानी गाय ज़िबा करने पर हुकूमती पाबंदी लगवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इसकी वजह जाहिर है ये थी कि हिंदू मजहब में गाय मुकद्दस थी, जबकि मुसलमान और अंग्रेज दोनों गाय खाते थे। इसीलिए गाय को ज़िबा करने या इसे काटने पर पाबंदी की कोशिशें आर्या समाज कर रहा था। आर्य समाज दरअसल एक इस्लाही, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, जो हिंदुओं में भी गलत रसूम और रवाज जैसा कि चाइल्ड मैरिज और जात पात को खत्म करना चाहती थी। ये सब कुछ वो पुरअमन तरीके से हासिल करना चाहती थी, जंग लड़ कर नहीं। इसीलिए गौ रक्षा की मुहिम भी कई बरस तक पुरअमन ही चलती रही। इस दौरान हिंदुस्तान भर में गौ रक्षणी सभा के नाम से कमेटियां भी कायम की गई। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि ये पीसफुल मूवमेंट भी राइट विंगर्स के हाथ चढ़ गई। वो इस तरह के जब 1883 में आर्य समाज के बानी फाउंडिंग लीडर दयानंद का इंतकाल हुआ तो नई क़यादत तो आना थी। तो इसमें दो सख्तगीर नजरियात वाले लीडर्स पंडित गुरुदत्त और पंडित लेख राम ने इस पुरअमन तंजीम को लीड करना शुरू कर दिया। इनकी क़यादत में गौ रक्षा की तहरीक वायलेंट होने लगी, लेकिन यहाँ भी वायलेंस का निशाना अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी ही बन रहे थे। अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल फार्मूला काम कर रहा था। यानी गौ रक्षा करने वालों ने ब्रिटिश छावनीज में जहाँ बड़े पैमाने पर गाय ज़िबा होती थी, इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सारा फोकस गाय की कुर्बानी या ज़िबा करने वाले मुसलमानों पर रहा।
दूसरी तरफ मुस्लिम राइट विंगर्स ने भी ये ऐलान किया कि हम हिंदुओं के खौफ से गाय ज़िबा करना, इसकी कुर्बानी करना बंद नहीं करेंगे। इस तरह तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे, लिहाजा हमें इस मूवमेंट को रेजिस्ट करना ही चाहिए। जब दोनों तरफ के राइट विंगर्स ने ये एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली तो नतीजा फसादात की सूरत ही में निकलना था, और जो निकला। 1893 में 1893 में यूपी के शहर आजमगढ़ से फसादात शुरू हो गए। फिर ये सिर्फ इसी शहर तक महदूद नहीं रहे, बल्कि बम्बे से लेकर बर्मा के शहर रंगून तक फैले। इन फसादात में दोनों तरफ से कम 100 कीमती जानें ज़ाया हुई, जिनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो बेगुनाह थे, जिनका इस मजहबी झगड़े से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। दोस्तों, इन मजहबी फसादात के दौरान अंग्रेज़ों का रवैया बहुत मशकूक होता था। अंग्रेज़ अफसरान ऐसे फसादात को रोकने में ज़्यादा दिलचस्पी और तहरीक नहीं दिखाते थे। हत्ता कि जब किसी इलाके में फसाद का माहौल बनता तो भी पहले से ये कोई हिफाजती इंतजामात नहीं करते थे। इसके मुकाबले में जब बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कोई मुजाहरा होना होता तो ये अफसरान उसे सख्ती से कुचल देते थे। यानी एक तरह से वो खुद ही इस मजहबी तकसीम को, हिंदू मुस्लिम तकसीम को हवा दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम राइट विंगर्स के बढ़ते हुए तसादुम में जल्द ही मजीद इश्यूज भी शामिल होने लगे। हिंदू राइट विंगर्स में इस बात का बड़ी शिद्दत से प्रोपेगेंडा होने लगा कि इंडिया का असल मजहब सिर्फ हिंदू मत है। बाकी मज़ाहब जैसा कि इस्लाम, मसीहत, सिखिज़म और बुद्ध मत तो बाहर से आने वाले मजहब हैं। इसलिए इन मज़ाहब को मानने वालों को वापस अपने पुराने मजहब पर आ जाना चाहिए ताकि हमारी कौम की ताकत बढ़ सके। इस तसव्वुर ने शुद्धि की तहरीक को जन्म दिया। शुद्धि संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब किसी को पाक करना, प्योर बनाना है। ये तहरीक भी आर्या समाज से ही 1890s में निकली थी। इस तहरीक ने भी कई मौके पर फसादात को जन्म दिया। गौ रक्षा और शुद्धि के अलावा एक और इशू भी था जिसने दोनों बड़े मज़ाहब के राइट विंगर्स को लड़ाई के लिए काफ़ी ईंधन फराहम किया। ये था जुबान का मसला। ये इशू मौजूदा यूपी से शुरू हुआ जो 19th सेंचुरी में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहलाता था। यहाँ ये सूरत हाल थी कि ज़्यादातर लोग उर्दू और हिंदी बोलते थे, जो कि बहुत मिलती जुलती ज़ुबानें थीं। लेकिन एक छोटा सा मसला ये था कि दोनों का रस्मुल ख़त, राइटिंग स्टाइल मुख्तलिफ था। उर्दू फ़ारसी अरबी राइटिंग स्टाइल में लिखी जाती थी और हिंदी जो थी ये देवनागरी स्टाइल में लिखी जाती थी। हम ज़ाहिर बरतानवी हुकूमत जानती थी कि हिंदू देवनागरी स्टाइल को और मुसलमान फ़ारसी स्टाइल को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने सूबे की सरकारी ज़ुबान लिखने के लिए सिर्फ उर्दू को करार दे दिया। इसका मतलब ये था कि अब सरकारी दफ्तरों में कागजात इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लिखे जा सकेंगे। इस बात से हिंदू भड़क उठे और उन्होंने देवनागरी को सरकारी दर्जा दिलवाने की कोशिशें शुरू कर दी। राइट विंगर्स ने देवनागरी की सपोर्ट के लिए जोश में आकर उर्दू पर तनकीद शुरू कर दी। दूसरी तरफ मुस्लिम राइट विंगर्स ने भी उर्दू की हमायत में देवनागरी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार अंग्रेज़ों ने देवनागरी स्टाइल को भी सरकारी दर्जा दे दिया। लेकिन तब तक हिंदुओं और मुसलमानों में एस्टेब्लिश हो चुका था कि उर्दू मुसलमानों की और हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है। इसके साथ ज़ाहिर है दोनों कम्युनिटीज़ में एक दूसरे से दूरी भी, नफ़रत भी पैदा हो चुकी थी। रेफरेंस के लिए आपको बताएं कि आज मॉडर्न इंडिया में भी कुछ लोग उर्दू ज़ुबान को मज़हब से जोड़ते हैं। इसकी एक मिसाल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में देखी गई। वहाँ एक म्यूनसिपल काउंसिल बिल्डिंग का साइन बोर्ड उर्दू में लिखा था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई कि सरकारी बोर्ड से उर्दू हटा ली जाए। तमाम अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा ज़ुबान सकाफ़त होती है, मज़हब नहीं। उर्दू ज़ुबान भी हिंदी और मराठी की तरह एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो हिंदुस्तान में इवॉल्व हुई है। बहरहाल 19th सेंचुरी में राइट विंग ज़ुबान और मज़हब को एक ही समझ रहे थे। इनके दरमियान बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का फ़ायदा बरतानवी हुकूमत को मिल रहा था। वो इस तरह के फसादात की वजह से लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हट गई थी। कोई भी नहीं सोच रहा था कि हिंदुस्तान की रियल प्रॉब्लम्स मज़हब या ज़ुबान नहीं, बल्कि अंग्रेज़ सरकार है जो इस खित्ते को लूट रही है। बरतानवी हुकूमत इंडिया से फ़ौजियों को भर्ती करके पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ फैलाने के लिए, अपनी जंगों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इन जंगों के अखराजात भी हिंदुस्तानी ख़जाने ही से पूरे किए जाते थे। सब कॉन्टिनेंट में तमाम सरकारी कानून साज इदारे यानी लेजिस्लेटिव्स पर अंग्रेज़ों का मुकम्मल कंट्रोल था। इनमें हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी। इंडियन इकॉनमी पर ताकतवर ज़मींदारों और सनतकारों का कंट्रोल था जो अंग्रेज़ों के साथी थे। इन सब मसाइल के हल के बजाय हिंदू मुस्लिम दोनों ही नॉन इश्यूज़ में उलझे हुए थे। इस घुटनज़दा माहौल में एक ताज़ा हवा का झोंका आया जिसका नाम था कांग्रेस। आज कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस का क़याम अंग्रेज़ों की साजिश थी। कुछ कहते हैं कि मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों की साजिश थी, कांग्रेस नहीं। दोनों में से किसकी बात ज़्यादा दुरुस्त है? बंगाल जैसे अजीम शान सूबे को तकसीम क्यों किया गया? इससे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में क्या मुफाद हासिल किया था?
یہ سب ساتھیوں دیکھیں گے لیکن اس منی سیریز کی اگلی قسط میں۔ دوستو، ہندوستان کے دونوں بڑے مذاہب جن میں اب دوری پیدا ہو رہی تھی، یہ اب سے کچھ برس پہلے 1857 میں مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑ چکے تھے۔ کچھ اسے بغاوت کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا تھی؟ اس پر آپ ہماری یہ مکمل ڈاکومنٹری سیریز ضرور دیکھیں۔ یہاں دیکھیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان آمد کی داستان کیا تھی، اور یہ رہی ہندوستان میں آرینز کے آنے کی اصل تاریخی کہانی۔